Alright, guys, let's begin with section 178, which provides for nomination and remuneration committee. To be precise, it's section 178, subsection 1, which provides for the NRC or nomination and remuneration committee. Now, again, what is going to be the agenda? हम precisely क्या prepare करेंगे, क्या तैयार करेंगे? तीन चीजें. एक, which are the companies which are required to constitute these committees? Secondly, what shall be the composition of the committee? ये committee में कितने members होंगे, कौन chairman होगा, किस type के members हो सकते हैं. So composition of the committee. Thirdly, we will be talking about the functions of this committee, terms of reference of this committee. And basically this whatever we will discuss is actually provided for in section 178.1, 178.3, 178.4. So what we will do is, along with, बिकॉज प्रिसाइसली यार देख, एग्जाम के लिए भी तो प्रिपेयर करना है ना, एट द एंड एग्जाम के लिए भी तो पढ़ना है ना. तो हम लोग हमारी प्रिपरेशन 178 में तीन चीज़ों के लिए बहुत प्रिसाइसली करेंगे. बट एट द सेम टाइम आई हैव ऑल्सो गिवन द इंटायर बेयर एक्ट प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन. जस्ट यू हैव टू टर्न द पेज आफ्टर 178, you will get that. So what we will do is we will also read out what is precisely mentioned in 178, 1, 2, 3, 4. Subsection 5 is about a stakeholders committee, so separately we will be dealing with that. But yes, let's get started with the nomination and remuneration committee. First things first, which are the companies? Is every company required to create, or is every company required to constitute nomination and remuneration committee? The answer is of course no. So first things first, सबसे पहली बात तो ये कि भाई applicability, सबसे पहले बात कर लेते हैं applicability की. कौन सी कंपनीज हैं जिन लोगों को ये कमेटी बनानी है? That's the first thing that we should be looking at. Do you remember when we talked about audit committee? I did tell you that again we will be talking about same things. Applicability is exactly the same as audit committee. तो हम यहाँ पर दो प्रिसाइज चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे हमने वहाँ पे की थी. वन इज द एप्लीकेबिलिटी, वन इज द कंपोजिशन ऑफ द कमिटी. तो हम ये दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. Let me just write few things here. So yes guys, these are the two things which we will be dealing with specifically. तो ये दो बातें हम लोग बहुत स्पेसिफिकली करेंगे कि एक, कौन सी कंपनीज को ये कमिटी स्थापित करनी है, और what shall be the composition of this committee. So that's what is on the agenda. सबसे पहले तो भाई एप्लीकेबिलिटी क्या है? सेम है, तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं यहाँ पे खास. तो एग्जैक्टली सेम है. ऑल पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, इनको कंपलसरी है. फिर द पब्लिक कंपनीज विच हैव पेड अप कैपिटल, paid up capital of rupees 10 crore or more, or turnover of rupees 100 crore or more. So remember there is an or between this. So turnover होगा तो भी चलेगा और paid up होगा तो भी चलेगा. दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो गई तो भी चल जाएगा. Further, और द एग्रीगेट बोरोइंग, टोटल मिला के जो कर्जा है, एग्रीगेट बोरोइंग ऑफ रुपीज 50 crore or more. So these are the companies which are required to constitute nomination and remuneration committee. We shall see in detail what these committees are required to do. In fact, I will talk about a lot of cases, and in fact I have so much content on this that I probably will have to restrict myself, because when I was actually reading the stuff, I just thought that I should restrict myself because too much to talk about this. Actually, this is a very big problem. There's a very big problem in Indian corporates. It's a very big issue in India, so certainly we will be talking about it. But yeah, I'll cut short, otherwise I'll just go on and on and on, and you guys will, आपके पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ना करने की. तो एट दिस मोमेंट आई हैव रेस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ.
थोड़ा सा मैंने कट शॉर्ट किया है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा इसमें समय आपको देना पड़ जाएगा. सो दिस इज द एप्लीकेबिलिटी. नाउ व्हाट शैल बी द कंपोजिशन. तो कंपोजिशन में जाने के पहले ना मैं आपसे पूछता हूँ, सब छोड़ो, मुझे बताओ नाम से क्या लग रहा है आपको. नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, सिर्फ नाम नाम देख के क्या लग रहा है, क्या बोलते हो क्लास, नाम देख के क्या लग रहा है. नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी अगर हम बात करें तो नाम देख के एक चीज हमें समझ में आ रही है कि यार सर्टेनली इट इज रिलेटेड टू व्हाट. नंबर वन, नॉमिनेशन किसकी, मतलब ग्रैमी अवार्ड्स की नॉमिनेशन की बात तो हम करेंगे नहीं, ऑस्कर नॉमिनेशन की तो हम बात करेंगे नहीं, तो नॉमिनेशन किसकी बात करेंगे हम लोग. तो फंडामेंटली ये आपको समझना होगा कि हिंदुस्तान की जो भी कंपनीज हैं, हिंदुस्तान की जितनी भी कंपनीज है, सबको मालूम है कि यू नो इट द गवर्नेंस ऑफ द कंपनी इज टेकन केयर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो आने वाले फ्यूचर में हमें कौन कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं, हमारे कंपनी के फ्यूचर लीडर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें उनको नॉमिनेट करना है ताकि हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स उन्हें अपॉइंट कर सके कंपनी में. सो नॉमिनेशन ऑफ द फ्यूचर लीडर्स ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, इन्हें नॉमिनेट करना, आइडेंटिफाई करना, ये काम ये कमिटी का होगा. विल टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, बट येस, नॉमिनेशन इज वन. सो आइडेंटिफाइंग फ्यूचर लीडर्स ऑफ द कंपनी. ये जो लीडरशिप पाइपलाइन में वैक्यूम नहीं आना चाहिए. द कंपनी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वन और टू इंडिविजुअल्स. एट द एंड ऑफ द डे द इंस्टीट्यूशन इज एन इंस्टीट्यूशन. Allow me to quote Mr. Mukesh Ambani. He says, at the end of the day, the company should run like a makoda. In fact, he says this. Makoda is said to be an insect होता है जिसमें बहुत सारे पैर होते हैं. So at the end, he says that organization should be like the makoda with 100 legs. If one or two legs are not working, doesn't matter. एक या दो लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. At the end of the day, it's not an individual which is important. It is the institution. It is the company itself which is important. तो वी विल हैव टू इंश्योर कि हमें फ्यूचर में हमें ये देखना होगा कि हमारे फ्यूचर के लिए लीडर्स तैयार हैं. इनफैक्ट गोदरेज ग्रुप की मैं अगर बात करूं तो गोदरेज ग्रुप का एक ड्रॉप डेड पॉलिसी है. अगर गोदरेज ग्रुप के सब डायरेक्टर्स मर गए ना, उनके पास पूरी की पूरी एक न्यू टीम डायरेक्टर्स की रेडी है टू टेक केयर ऑफ फ्यूचर. दिस इज द सॉर्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. दिस इज द सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस दैट दे हैव. And then you see the problems which have happened in Infosys, you see the problem which has happened in Tata's, everywhere. Indian companies, I don't know why promoters are so much attached. They want to die on the board. मरने के पहले वो छोड़ते ही नहीं कंपनी की सीट में, अपनी सीट छोड़ते नहीं वो लोग. So at the end of the day, we must all understand that nobody is permanent. At the end of the day, everybody is replaceable. Everybody should understand, if a director has reached the age, 75, 72, it's time they should say goodbye to the company and let the young minds take care of the company. So much problem has happened in Indian boards. You see Infosys, क्या हुआ Infosys में 2011-12 नारायण मूर्ति जी रिटायर कर गए. 2012 में शायद, if I'm not wrong, if I'm not incorrect, विशाल सिक्का जी को लाया गया सैप से. क्या हुआ, विशाल सिक्का को 2 साल में लड़ाई हो गई प्रमोटर्स की विशाल सिक्का जी की, छोड़ के चला गया विशाल सिक्का छोटा आदमी थोड़ी ना यार. और आकल सैप से लेकर आए थे कनाडा से उसको. सेम प्रॉब्लम हैपेंड विद टाटा. 2014 में इन्फोसिस में गड़बड़ हुई थी, मतलब लीडरशिप को लेके. 2016 में 24 October मिस्टर साइरस मिस्त्री वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कंपनी. So why is this happening? Why the company could not run smoothly? In fact, to talk about Tata Motors Limited, precisely one of the group companies of Tata Sons Limited, do you know a company like Tata Motors, यार 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है. हिंदुस्तान की लार्जेस्ट ऑटो मेकर है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दिग्गज ऑटो मेकर, हिंदुस्तान की सबसे दिग्गज ऑटो कंपनी बाय सेल्स 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेके बैठी हुई है. वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बैंकॉक के, थाईलैंड के एक होटल से कूद के आत्महत्या कर लेता है. और मैनेजिंग डायरेक्टर के मरने के बाद 2 साल तक कंपनी को मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं मिलता.
कंपनी में 2 साल तक के कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं था, साइरस मिस्त्री नया नया आया था, उसको उठा के इंटरिम डायरेक्टर बना दिया 2 साल के लिए। भाई, आई एम नॉट टॉकिंग अ नॉर्मल ऑर्डिनरी कंपनी, द कंपनी हैज लाइबिलिटी ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़। कंपनी जिसमें 1 लाख करोड़ की 1 लाख करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है, कर्जा है, इनोवेशन ड्रिवन कंपनी है, ऐसी कंपनी में लीडर 2 साल नहीं होना। इंटरिम चेयरमैन, आप इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हो साइरस मिस्त्री को। भाई, कार बनाने वाली कंपनी 1 साल में 5-6 मॉडल ना निकाले तो कार की कंपनी का खेल खत्म हो जाता है। So imagine, company like I'm talking about the best boards I'm talking about one of the best groups in India. Tata Group का बात कर रहा हूँ मैं. For 2 years they did not have a managing director in the company. So it is job of this committee, the nomination committee, to ensure that company is not dependent on 1 or 2 persons, 1 or 2 individuals in the company. एक जाएगा दूसरा आएगा. That is the beauty of corporation, right? The directors may come and go, but the corporation goes on forever. That is the beauty of joint stock companies, right? This is fundamentally the idea. That is why people have reposed more confidence in the companies, because it is not dependent on individuals. तो बड़ी बड़ी कंपनियों में नॉमिनेशन कमेटी का काम होता है ये कि फ्यूचर के लीडर्स को आइडेंटिफाई करना, फ्यूचर के हमारे कंपनी में जो डायरेक्टर्स बन सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करके रखना. दैट इज द रोल ऑफ नॉमिनेशन कमेटी, है ना. सक्सेशन प्लान करना, सक्सेशन प्लानिंग समझते हो आप. हिंदुस्तान में बड़े बड़े दिग्गज ग्रुप्स हैं. अभी लार्सन एंड टूब्रो से एम नायक जी 30 साल के बाद रिटायर हुए. तो रिटायर होने के पहले उन लोगों ने 3-4 लीडरशिप टीम्स तैयार की, उन्होंने उनको ट्रेन किया, और फिर ही पास द बैटन टू द न्यू गाय, द न्यू फेलो हु हैज बिकम अ डायरेक्टर. आई थिंक सम सुब्रमण्यम समथिंग, आई डोंट रिकलेक्ट एग्जैक्टली द नेम. So every company should plan about the succession. In fact, every company should plan कि ठीक है मुकेश अंबानी के बाद क्या होगा. See, मुकेश अंबानी इज अ स्मार्ट गाय. What he has done basically is the offloading of stake. उसने अपनी कंपनियों की हिस्सेदारी प्रोफेशनल कंपनीज को 30%, 10%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30% जियो में उसने क्यों बेच दिया. जियो, फेसबुक जैसी कंपनीज को. भाई, कंपनी प्रोफेशनली ड्रिवन होगी. मुकेश अंबानी को मालूम है मैं मर भी गया तो इतने लोगों ने इतना बड़े अमाउंट्स लगाए हुए हैं कि प्रोफेशनली कंपनी रन की जाएगी. मुकेश अंबानी मर भी गया तो जिन लोगों के स्टेक्स इन्वॉल्व है, दे विल हायर राइट पीपल एंड राइट पीपल विल रन द कंपनी, है ना. सो ये एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान में दिक्कत की बात है. तो हिंदुस्तान में कंपनी बड़ी इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट हो जाती है. सुपरस्टार कल्चर है इंडिया में, ये नहीं होना चाहिए. तो नॉमिनेशन कमेटी का ये जिम्मेदारी होता है कि हम फ्यूचर के लिए हमारे लीडर्स आइडेंटिफाई करें. हमारी कंपनी में फ्यूचर में किसे हम डायरेक्टर बना सकते हैं, ऐसे आइडेंटिफाई करें. और सक्सेशन जो है वो स्मूथ होना चाहिए. आप लेट्स टेक एग्जाम्पल फ्रॉम द रीसेंट इंडियन टीम. एंड 10 साल पहले जो 10-15 साल पहले जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम थी वही आज इंडियन क्रिकेट टीम है. लुक एट हाउ ब्यूटिफुली धोनी लेफ्ट कैप्टनसी, he trained Virat Kohli and then eventually he left. First he left from test matches, he passed the baton to Virat Kohli in test matches. कितना स्मूथली रिटायरमेंट हुआ, कितना स्मूथली सब काम हुआ, है ना. आज इंडियन टीम में I was looking at the match these days, the 2020 match which is going on between India and England. It looks more like a selection चल रहा है, ऐसा लगता है इंडियन प्लेयर्स का. बिकॉज इंडिया में अभी बेंच पे 10 तगड़े प्लेयर तैयार है. मतलब जो प्लेइंग 11 होते हैं उसके अलावा 10 प्लेयर ऐसे भी हैं जो बहुत तगड़ा खेलते हैं. मतलब 11 प्लेइंग 11 में से 5-6 को कुछ हो भी गया तो 5-6 नए पूरे के पूरे तैयार पड़े हुए हैं. तो बिल्कुल कंपनी में भी उसी तरह का कल्चर होना चाहिए कि हमारे अगर कुछ डायरेक्टर्स हैं, कुछ मैनेजमेंट की टीम लोग हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट ना हो के हमें और लीडर्स तैयार करने चाहिए फ्यूचर के लिए. तो उसके लिए बहुत कॉन्शियस एफर्ट लगेगा, उसके लिए बहुत कॉन्शियस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. दैट इज व्हाट द रोल ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटीज. आप लोग तो शायद पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन हाँ 1999, 2003 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 3 बार लगातार वर्ल्ड कप जीती यार. पता है क्यों जीतते थे? क्योंकि उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक थी. बेंच स्ट्रेंथ का मतलब होता है जो प्लेइंग 11 खिलाड़ी होते थे उसके अलावा उनके और 11 खिलाड़ी बिल्कुल वैसे ही तगड़े तैयार होते थे. मतलब हिंदुस्तान में तो ऐसा होता था कि एक फास्ट बॉलर इंजोर हुआ तो 2 स्पिनर को ही खिलाना पड़ता था. ऑस्ट्रेलिया में यार मैग्रा जाता था, गिलेस्पी आता था, गिलेस्पी जाता था, फ्लेमिंग आता था, फ्लेमिंग गिलेस्पी जाते थे, तो ब्रेटली आता था. भाई उनके बेंच पे ब्रेटली बैठा हुआ था. मतलब इमेजिन, ब्रेटली नहीं है तो मिचेल जॉनसन है. तो उनके इतने सारे प्लेयर्स तैयार थे कि 5-10 को कुछ हो भी गया तो टीम को कुछ नहीं होता था.
सो बिल्कुल वही आइडियोलॉजी आप यहाँ पर समझिए, वहाँ यहाँ पर भी उसको लगाइए, तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो नॉमिनेशन कमिटी, जो नॉमिनेशन शब्द का इस्तेमाल किया, मैं सिर्फ इसके ऊपर डिलिबरेट कर रहा हूँ। तो वन ऑफ द रोल ऑफ नॉमिनेशन एमिनेशन कमिटी इज टू आइडेंटिफाई द फ्यूचर लीडर्स ऑफ द कंपनी, टू नो, टू अंडरस्टैंड किस टाइप के लोग हमारे कंपनी में चाहिए होंगे, हमें चुनना पड़ेगा उनको। What I'm trying to tell you is, in the the examples that I sort of try to give you, uh, whether it is a cricket team or whether it is the directors, institution of directors in the company, the board of directors in the company, the someone should ensure that things go smooth, the transit, अगर कुछ डायरेक्टर्स रिटायर होते हैं, रिजाइन करते हैं, तो जो ट्रांजिट है वो स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि कंपनी की वर्किंग डिपेंड करती है उनके ऊपर। तो nomination committee does provide for that. And secondly, if you notice, which is the word, the other word is remuneration. तो डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन, इसके ऊपर कौन बात करेगा? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक डायरेक्टर का पैकेज है 150 करोड़, हाउ डू यू फील? ज़्यादा है, कम है, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? तो अक्सर कुछ कुछ बच्चे एकदम खिलाफ होते हैं कि नहीं, नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? अगर वो आदमी कंपनी को 2000 करोड़ कमा के दे रहा है, तो उसको 150 करोड़ देने में क्या हर्ज है? लेट्स टॉक अबाउट द सीईओ ऑफ गूगल, इंडियन है जो। सो लेट्स टॉक अबाउट हिम नाउ। ही हैज क्रिएटेड मल्टीपल प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फॉर गूगल, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ही हैज क्रिएटेड फॉर गूगल विच आर मेकिंग ह्यूज रेवेन्यू। सो no harm in giving good salaries, good remuneration, but provided, मतलब अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो of course they deserve lion's share। अगर मेरी कंपनी में आप 1000 करोड़ रुपए का धंधा लेके आते हो, तो I won't shy away from giving you 50 करोड़, 100 करोड़ for that matter, है ना? अगर आप कंपनी के लिए 1000 करोड़ का धंधा करोगे, तो 50-100 करोड़ रुपए कंपनी क्यों नहीं देगी आपको? बिल्कुल देगी। सो नंबर वन, रेम्यूनरेशन ज़्यादा देने में प्रॉब्लम नहीं है, बट रेम्यूनरेशन का आपकी परफॉर्मेंस के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, फंडामेंटली ये जो दो चीज़ें आप देखोगे, नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन, ये दोनों चीज़ों के बारे में ये कमेटी का रोल होगा। ये कमेटी ये दोनों के बारे में रोल प्ले करेगी, ठीक है? नाउ कट टू द कंपोजिशन। अब कंपोजिशन की बात करते हैं। मतलब फंडामेंटली हमारे डायरेक्टर्स का, हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन क्या होगा? हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन डिसाइड करने वाली है ये कमेटी। तो इस कमेटी में अंदर के लोग होने चाहिए जिनकी सैलरी डिसाइड करने वाले, जिनकी रेम्यूनरेशन डिसाइड करने वाले, कि बाहर के लोग होने चाहिए जो न्यूट्रल व्यू ला सके, जो इंडिपेंडेंट राय, इंडिपेंडेंट व्यू, निर्दलीय राय ला सके अपनी। नेचुरली इंडिपेंडेंट लोग ज़्यादा होने चाहिए, है ना? इसीलिए यहाँ पे अगर आप कंपोजिशन देखोगे, लुक एट द कंपोजिशन हियर। द कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मतलब जो कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन हाफ शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। क्या बोला है? द कमिटी शैल हैव 3 or more sorry 3 or more, sorry guys, one second, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ देम शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो पहली बार आपके साथ NED, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शब्द का जिक्र हो रहा है। आज तक मेरे ख्याल से आपके साथ मैंने कभी भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का बात नहीं किया था। सो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं होते हैं। ये सिर्फ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करते हैं, अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, कंपनी में
अपने इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कमिटी में इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि अब तो हम लोग रेम्यूनरेशन डिसाइड करने वाले हैं सारे लोगों की फुल टाइम जो फुल टाइम काम कर रहे हैं। उसमें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो चाहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, बट ये बिल्कुल ही कंपनी से बिल्कुल इनका रिश्ता नाता नहीं है दूर दूर तक, तो ये तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट न्यूट्रल व्यू लेकर आएंगे अपनी। सो एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जिसमें से आधे मिनिमम हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बहुत डिटेल में आएगा, इतना डिटेल में आएगा कि आप थक जाओगे, इतना डिटेल में आएगा। बट एट दिस टाइम डोंट फोकस देयर, focus on the facts which I am telling you. And the chairperson shall be appointed as a member, but the chairperson of the company may be appointed as a member, but he shall not chair such committee. It's raining heavily here. Yeah. So the third point is the chairperson of the company he can become member of committee. जो chairperson है, he can actually become he can actually become member of the committee, but he cannot become chairman or chairperson of the committee. Just give me one moment, I'll just write it down nicely. Okay, so this is about the applicability and the composition of the committee. Now we shall get into the core crux part, which is actually the terms of reference of the nomination and remuneration committee. Exactly क्या roles होंगे committee के, committee क्या करेगी, exactly क्या क्या करना होगा, वो हम लोग देखना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो let's get started. Alright guys, let's get into the terms of reference of the nomination and remuneration committee. तो exactly nomination remuneration committee को क्या करना होगा वो हम लोग देखना शुरू करते हैं. So that is the third thing that we are required to do, right? तो ये तीसरी चीज़ है जिस पे हमारा फोकस होगा. इसे हम रीड करेंगे and eventually we will take the note of this also. So let's just first of all exactly read what are specific duties, and I shall again give you my commentary on various aspects, various things that I have particularly taken note of, and would try to summarize it. But yeah, I would like to share few things with you so that you get an understanding of why this committee is important. Okay, so the level and composition of remuneration is reasonable and sufficient to attract, number one, to attract, retain and motivate the directors. तो सबसे पहली बात तो ये है कि नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का जो पहला टास्क है, जो पहला काम है, वो ये है कि दे शुड इंश्योर दैट द लेवल ऑफ कंपोजिशन ऑफ रेम्युनरेशन, जो रेम्युनरेशन है कंपनी में, दैट इज रीजनेबल एंड सफिशिएंट, वन टू अट्रैक्ट द डायरेक्टर्स, सेकंड टू रिटेन, जो आ गए हैं वो रिटेन रहे, एंड टू मोटिवेट देम. तो रेम्युनरेशन ज़्यादा होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स जस्ट दैट इट शुड बी रीजनेबल सो दैट जो टैलेंट है, जो अच्छे लोग हैं, वो हमारे कंपनी में आने के लिए रेडी हों, हमारे कंपनी में वो रहकर काम करने से खुश रहें और मोटिवेटेड रहें काम करने के लिए. सो दैट इज़ नंबर वन थिंग. सेकेंडली, द रिलेशनशिप ऑफ परफॉर्मेंस, द रिलेशनशिप ऑफ रेम्युनरेशन टू परफॉर्मेंस इज क्लियर एंड मीट्स अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स. ठीक है, ज़्यादा रेम्युनरेशन देना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. विशाल सिक्का in Infosys, he was promised the salary of 30 crores, but then the board, when they had appointed Mr. Vishal Sikka, बहुत क्लियर टारगेट रखा था कि इतने बिलियन डॉलर से अपने को आगे बढ़ना है. So the role was given to him. He could not live up to that expectation, and eventually he was under pressure
by the founders, by the founding shareholders of the company, and eventually he left also. So I don't know whether what happened was right, wrong, but मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, रेम्यूनरेशन ज़्यादा देना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट हाँ, परफॉर्मेंस का और रेम्यूनरेशन का एक क्लियर रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। अक्सर मैं जब भी बच्चों को ये पढ़ाता हूँ ना, मैं मेरे एक फ्रेंड की कंपनी का मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है नागपुर में, मैं उसका एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे उसकी पॉलिसी आपको बतानी है। बहुत छोटी सी बात है ना। फंडामेंटली ही ओन्स फुटवेयर शॉप्स एंड लॉट ऑफ होलसेल रिटेल, काफ़ी महाराष्ट्र में उसका फुटवेयर का काम है। बट फंडामेंटली मैं आपको उसकी एक शॉप की बात बता रहा हूँ जो उसने शुरू की थी और जो उसने चलाई ना। उसकी शॉप में 15-20 लोग काम करते होंगे, वर्कर्स होंगे। एंड पहले उसके किसी रिलेटिव ने चलाने की कोशिश की थी, उसके चाचा या मामा वगैरह दो तीन लोगों ने चलाने की कोशिश की थी, नहीं चली। वंस हिज डैड वाज वेरी सैड कि यार अब ये दुकान चलती नहीं है, इसको सेल ऑफ कर देते हैं। तो एक्चुअली उन्होंने वो वाली जो उनकी शॉप थी वो सेल करने के लिए किसी को ऑफ़र की, और जब उसके डैड ने सेल करने के लिए किसी को ऑफ़र की तो सामने वाले ने बोला कि यार ये दुकान तो अनलकी है या पनौती है, समथिंग लाइक दैट, एंड ये कौन लेगा। तो माय फ्रेंड दिस फ्रेंड गॉट रियली ऑफेंडेड है। तो मतलब है तो वो खुद ही बोलता है कि सनक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलता है मैं हूँ ही सन की, थोड़ा मेरा दिमाग सनकता है तभी मैं काम कर पाता हूँ। तो इट जस्ट गॉट टू हिम कि किसी ने मेरे डैड को ऐसे बोला कैसे कि तुम्हारी दुकान अनलकी है करके। तो उसी टाइम पे उसने बोला उसके डैड को कि ये शॉप मेरे नाम पे करो, मैं चलाऊँगा इसको। एंड देन ही टेल्स अस द स्टोरीज दैट इनिशियली ही यूज्ड टू, उसके पूरा दिन का जो बिलिंग होता था दैट यूज्ड टू बी 1200 रुपये, समथिंग लाइक दैट। अभी वो एक दिन का 4 लाख 5 लाख का सेल्स करता है। सो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस सक्सेस, क्या वजह है। तो देन ही वन शेयर्ड कि यार मेरे दुकान पे जितने लोग काम करते हैं ना, सब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वर्कर्स जो जूते की दुकान है, वहाँ पे जूते की दुकान में काम करते हैं, तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको 6-7 हज़ार रुपये, 7,000 8,000 रुपये सैलरी मिलती है पर जो सेल्समैन जितना जूता बेचेगा उसके हिसाब से सपोज अगर कोई एक पेयर ऑफ फुटवेयर सेल करता है तो पर पेयर ऑफ फुटवेयर ही गेट्स 30 रुपीज़ और 50 रुपीज़, ठीक है। नाउ सो दिस इज़ द पॉलिसी एट हिज शॉप। सो व्हाट हैपेंस देयर, अभी वहाँ पे जो लड़का है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पूरे महीने की सैलरी मिल रही है 8,000 रुपये। वो क्या सोच रहा है, अगर मैंने आज 12-13 जोड़ी जूते बेच दिया या जूता चप्पल जो भी फुटवेयर है फंडामेंटली, और अच्छी चलती है उसकी शॉप, तो उसके दुकान का लड़का क्या सोचेगा कि अगर मैंने आज 12-15 पेयर ऑफ शूज़ बेच दिए तो मेरे 500 रुपीज़ तो आज बन गए। इफ़ आई सेल 12-13 फुटवेयर, 12-13 पेयर ऑफ शूज़ एवरी डे, 500 रुपीज़ पर डे अगर मेरा बनता है तो मेरी 15,000 रुपीज़ सैलरी बन जाती है ना। तो 8,000 उसकी फिक्स सैलरी है, 15,000 जो उसको मिलेगा वो उसका कमीशन होगा, उसका इंसेंटिव है वो। That is the reason anybody who goes in his shop, there are 15 people who are looking forward to make 500 rupees each day of their work. Nobody leaves that shop getting disappointed. कोई भी वहाँ से disappoint होकर बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि that salesman, that guy is fighting for his life. वो वहाँ जान दे देगा लेकिन आपको दुकान से बाहर नहीं जाने देगा बिना जूता चप्पल खरीदे। क्या दिक्कत है आपको, साइज़ नहीं है, कौन सा कलर चाहिए, कौन सी साइज़ चाहिए, आज नहीं मिलेगी कल घर पे पहुंचा दूंगा, मैं पर्सनली डिलीवर करूंगा, प्रॉब्लम आएगी एक्सचेंज कर लेना, मैं घर पे आके वापस लेके जाऊंगा, पैसे वो वापस देके जाऊंगा। दिस इज द सॉर्ट ऑफ सर्विस बिकॉज पर्सनल स्टेक्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। मैं आपको एक नागपुर के गांधी बाग इतवारी के जूते की दुकान की बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बात ये नहीं है कि किस लेवल पे काम हो रहा है और ही इज ऑपरेटिंग इन गुड लेवल। बात यह है कि जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आप किसी की भी सैलरी, किसी की भी रेम्यूनरेशन फिक्स कर दोगे
तो उसकी मोटिवेशन कहाँ रहेगी? तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट रिलेशनशिप ऑफ परफॉर्मेंस इज क्लियर एंड मीट्स द परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स. साथ ही साथ देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड इंसेंटिव पे reflecting short and long term performance objectives which are suited to the working of the company and objectives. तो कहीं ना कहीं ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेम्यूनरेशन है इट शुड बी, जो जो रेम्यूनरेशन का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स सैलरी और इंसेंटिव के अप्रोप्रिएट मिक्सचर होनी चाहिए. इनफैक्ट टाटा मोटर्स में एक डायरेक्टर को जब एक डायरेक्टर की सैलरी बढ़ाने के लिए रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स के पास मूव किया था, तो शेयर होल्डर्स डिड नॉट पास द रेजोल्यूशन. दे डिड नॉट पास द रेजोल्यूशन ओनली फॉर वन डायरेक्टर. बाकी डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन शेयर होल्डर्स ने अप्रूव की थी. Why they did not pass the resolution for one director is because the salary structure was not appropriate. When one reporter was asking why did you vote against the resolution, he mentioned on record that this guy should not be getting fixed salary because where is the motivation. तो उन्होंने बोला कि हमने डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन का रेजोल्यूशन इसलिए नहीं पास किया क्योंकि जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा फिक्स सैलरी थी, पूरी की पूरी फिक्स रेम्यूनरेशन थी. जो डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन है वो हमेशा फिक्स प्लस इंसेंटिव कम अप्रोप्रिएट मिश्रण होना चाहिए. क्यों? क्योंकि कुछ पैसा फिक्स मिल रहा है ठीक है, बट फिर मोटिवेशन कहाँ आएगी और काम करने की? इंसेंटिव बेस भी तो होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस भी तो होना चाहिए कि ठीक है कंपनी का इतना टर्नओवर बढ़ता है देन यू गेट दिस मच एक्स्ट्रा अमाउंट XYZ. यू नो देयर आर डिफरेंट वेज टू स्ट्रक्चर इट. बट लेट्स जस्ट लुक एट द 3 पॉइंट दैट वी हैव डिस्कस सो फार. हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं. मैं तीनों पॉइंट्स आपको एक बार बताना चाहता हूँ फिर से, प्लीज फोकस करिए. नंबर 1, भाई सबसे पहली बात तो द लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ रेम्यूनरेशन इज रीजनेबल सफिशिएंट टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेटेड डायरेक्टर्स. तो पहली बात तो ये कि आपको इफ यू वांट टू हायर मतलब आप इफ यू विल ऑफर पीनट्स यू विल ओनली हायर मंकीज. सो अगर आपको बब्बर शेर चाहिए तो उसकी रेम्यूनरेशन भी वैसी रहेगी ना. यू कांट ऑफर पीनट्स टू द लायंस, राइट? तो आपको कंपनी में अगर तगड़े लोग चाहिए, आप एक बात बताओ, आप करोगे किसी के लिए काम? इफ द रेम्यूनरेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट यू विल नॉट वर्क. It will not feel soulful because there are certain needs that you everybody has personal needs, everybody has personal goals. If somebody will ask me कि यार आज लाख रुपए महीने पे काम करा, I will not work for them. I cannot work for that amount. So please understand. अगर if you want to hire lions, you cannot offer them peanuts. So to a great extent, appropriate salary structure होना चाहिए ताकि आप अच्छा टैलेंट अपनी कंपनी में अट्रैक्ट कर सको, वो लोग रिटेन कर सको और साथ ही साथ वो मोटिवेटेड रहे काम करने के लिए. सेकंड, रिलेशनशिप ऑफ रेम्यूनरेशन टू परफॉर्मेंस इज क्लियर एंड मीट्स द अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स. तो अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स होने चाहिए कि भाई अपने को इतनी $1 बिलियन की कंपनी बननी चाहिए, इतना सेल्स अपना होना चाहिए. रेम्यूनरेशन और परफॉर्मेंस का एक क्लियर कट रिलेशनशिप होना चाहिए. फर्दर, the remuneration to directors, KMP and senior management, it involves the balance between fixed and incentive pay reflecting short and long term objectives which are suited to the working of the company and its objective. तो रेम्यूनरेशन हमेशा फिक्स और इंसेंटिव की मिक्स्ड मिश्रण होनी चाहिए. स्ट्रक्चर जो है सैलरी का रेम्यूनरेशन का वो मिक्स्ड होना चाहिए, कुछ फिक्स और कुछ परफॉर्मेंस बेस या फिर इंसेंटिव टाइप्स. So these are the 3 things. If you very carefully see, ये 3 चीज़ें अगर आप देखोगे तो ये है रेम्यूनरेशन से रिलेटेड, है ना. ये तो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं. नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी को जो 3 फंक्शंस दिए गए हैं वो ये 3 फंक्शंस अगर आप एकदम ध्यान से नोट करोगे तो these 3 are related to the remuneration. ठीक है. I am giving you live example. Tata Motors one director's remuneration the shareholders did not approve because सैलरी स्ट्रक्चर जो था पूरा का पूरा फिक्स था. देयर वाज नथिंग इंसेंटिव, उसमें कुछ भी नहीं था या फिर इंसेंटिव पे किसी भी प्रकार की नहीं थी. तो इट्स नॉट अ गुड वे ऑफ पेइंग समबडी और ये हेल्दी भी नहीं है. आई एम टेलिंग यू. सी लेट्स टॉक अबाउट से सपोज कैप्स की बात करते हैं. हाउ डू यू थिंक द कैप्स फैकल्टी इज गेटिंग द रेम्यूनरेशन? देयर इज नो फिक्स अमाउंट. ऐसा नहीं है कि anybody who becomes the director in CAPS Learning Private Limited gets 5 lakh rupees per month. That's not the case.
It depends on your performance. It depends of how much people you are teaching, how much subjects you teach, how many streams do you teach in. It depends on a lot of factors, how many students you are catering to, what sort of services you are offering to the organization. So everything, every penny is accounted for. So आप जितना परफॉर्म करोगे उसके बेसिस पे आपकी रेम्यूनरेशन है. इट डजेंट मैटर कि कोई फिक्स कि कोई टीचर की फिक्स रेम्यूनरेशन नहीं है. डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस, डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर डूइंग. आप किस तरह से काम कर रहे हो, कंप्लीटली उस पर डिपेंड करेगी सारी चीज़ें. ठीक है. सो दैट इज़ द रीज़न द ऑर्गेनाइजेशन इज़ हेल्दी, द पीपल आर मोटिवेटेड. दैट इज़ द रीज़न. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन के लिए 3 जो फंक्शंस हैं वो रेम्यूनरेशन से रिलेटेड है. लेट्स फोकस ऑन द अदर थिंग्स दैट हैव बीन टॉक्ड अबाउट. तो 3 चीज़ें इंश्योर करनी है रेम्यूनरेशन से रिलेटेड, और अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो इसके बाद जो बातें आएगी ना वो नॉमिनेशन से रिलेटेड आएगी. सो ड्यूटीज और क्या क्या है. आइडेंटिफाइंग पर्सन्स हु आर क्वालिफाइड टू बिकम डायरेक्टर्स एंड हु मे बी अपॉइंटेड इन द सीनियर मैनेजमेंट. तो कहीं ना कहीं हमें आइडेंटिफाई करना है कंपनी के अंदर के भी जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है कंपनी के लिए, जो अच्छा काम कर रहा है, उनको भी आइडेंटिफाई करिए. फ्यूचर में उनको डायरेक्टर बना सकते हैं. कंपनी के बाहर अगर आप देखते हो कि कोई आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है तो यू कैन ऑल्सो पोच दैट पर्सन इन योर कंपनी. आप बाहर से भी, कंपनी के बाहर के भी कुछ लोग हैं अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो आप उनको भी अपने पास ला सकते हो. तो बट नज़र रखनी पड़ेगी ना, आपको सिलेक्ट करना है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फिट में बैठते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कौन से व्यक्ति के साथ ज़्यादा अच्छा सूटेबल है, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन और व्यक्ति दोनों के गोल्स फुलफिल हो सकते हैं. फर्दर, recommend to the board their appointment and removal. Just because you're director, just because you're sitting at the top, that does not give you liberty to not perform. So कौन से डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट किया जाएगा, कौन से डायरेक्टर्स को कंपनी में रिटेन करना है, किसको रिमूव कर देना है, किसको अपॉइंट करना है, इसके लिए भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंडेशन जाएगी, किसको अपॉइंट करना, किसको रिमूव करना, ये रिकमेंडेशन जो जाती है नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी की जाती है. So any company which has got nomination and remuneration committee, it actually recommends who should become the director, who should be removed from the board. Further, shall specify the manner for effective evaluation of the performance of the board, its committees, its individual directors. और जो evaluation होगी कौन करेगा? By the board. तो board of directors जो हैं सभी directors की performance evaluation करेंगे. आई विविडली रिमेंबर इन्फोसिस में एक मीटिंग हुई थी 2011 में आई थिंक. उसमें डायरेक्टर्स जिनका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा था उनकी इमेज जो थी आईपीएल के विनिंग कैप्टन में मॉर्फ कर दी गई थी. सो उस समय शायद सबसे अच्छा परफॉर्मर नारायण मूर्ति जी थे, तो उनकी फ़ोटो एम एस धोनी में लगा दी थी क्योंकि एम एस धोनी शायद जीत गया था. तो इवैल्यूएशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी होता है, स्कोर कार्ड सबका बनता है. तो पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर कंपनी के एक एक डायरेक्टर की इवैल्यूएशन करेंगे कि तुम्हारा परफॉर्मेंस एज अ डायरेक्टर कैसा रहा है. ठीक है, रेटिंग होती है. टू बी कैरिड बाय द बोर्ड, बाय द एनआरसी, दैट इज नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी की भी जिम्मेदारी है परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड. और नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी को लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक दूसरे को रेट करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, एक दूसरे को इवैल्यूएट करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी किसी एक्सटर्नल एजेंसी को हायर कर सकती है ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सके. सो दैट्स दिस हैपेंस, द एक्सटर्नल बोर्ड विल इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस एंड रिव्यू इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस. तो तगड़ी बात है भाई. पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कंपनी में कौन लोगों को फ्यूचर में डायरेक्टर बनाया जा सकता है, रिकमेंड करो कौन से डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, किसको रिमूव करना है. फिर नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी बताएगी भाई किस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सब कमिटीज़ को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंडिविजुअल डायरेक्टर्स को इवैल्यूएट किया जाए. चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करें, चाहे नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी करे, चाहे कोई एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट एजेंसी करे, और रिव्यू इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस. तो पहले तो इवैल्यूएशन का मैकेनिज्म बताना है और इवैल्यूएशन का रिव्यू करना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इवैल्यूएशन सही तरीके से बोर्ड को सही तरीके से इवैल्यूएट किया जा रहा है या नहीं. सो येस, दिस हैज़ टू बी डन.
Nomination Remuneration Committee has a very, very, very big role, guys. Let me just give you brief commentary about what I feel. You must be kid यार, मतलब 2014 इन्फोसिस में विशाल सिक्का को जिस दिन निकाला गया था, विशाल सिक्का एक्चुअली प्रेशर में रिजाइन करके चले गया, स्टॉक प्राइस 10% टूट गया था. सेम साइरस मिस्त्री को मतलब इट इज़ सो अजीब कि रतन टाटा रिटायर होने वाला था, रतन टाटा जी रिटायर होने वाले थे, आपको पता है रिटायर होने वाले हैं. सिलेक्शन कमेटी बनाई गई थी कि हु विल सक्सीड रतन टाटा जी. They could not select anyone. Good 2-3 year went in planning. They could not select anyone. In the selection committee, Mr. Cyrus Mistry was there. कभी आपने सुना है क्या सिलेक्टर बिकेम द सिलेक्टी, खुद ही को चुन लिया? तो बाकी सिलेक्शन कमेटी के लोगों ने साइरस मिस्त्री में देखा टैलेंट और बोला इन्हीं को बना लेते हैं. बेचारे ने पोलाइटली बोला भी कि मैं यार मैं ऑलरेडी अपने फैमिली बिजनेस में खुश हूँ और अकम्प्लिश्ड हूँ, तो आई वुड नॉट लाइक टू जॉइन टाटा ग्रुप. फिर आफ्टर डेलिबरेट रिक्वेस्ट्स he actually joined Tata Group. और बताओ 2 साल बाद you remove him from the position of the director. रतन टाटा, सैरस मिस्त्री, ये सारे established individuals हैं, ये सारे अच्छे लोग हैं, इनमें ख़राब कोई नहीं है. मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेसेस की बात. प्रोसेसेस इतने ख़राब हैं कि यहाँ पे भी बड़ी से बड़ी दिग्गज कंपनियों में भी दिक्कतें होती है ना. सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम यार. और इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि पीपल आर वेरी इमोशनल अबाउट कंट्रोल. आई विल बी द डायरेक्टर इन द कंपनी. बहुत इमोशनल है लोग, छोड़ते नहीं पोजीशन, अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है. आपने और अगर आप देखोगे ना अब्रॉड में, इंडिया के बाहर बहुत सारी जुरिस्डिक्शंस में कॉन्सेप्ट है BOT, बिल्ड ओन ट्रांसफ़र. लोग बनाते हैं, थोड़ा समय ओन करते हैं, ट्रांसफ़र करके निकल जाते हैं, है ना. पीपल आर वेरी हैप्पी लिविंग देयर लाइफ ऑल्सो. So I think it is going to be, it will be followed up in India soon. हिंदुस्तान में भी चीज़ें बेहतर होगी, but yes, this is a very, very, very important role to be played by the Nomination and Remuneration Committee. Anyway, there are 2 more points which I need to tell you. Further, formulate a criteria for determining qualifications, positive attributes, and independence of the director. तो कहीं ना कहीं आप ना ऐसी क्राइटेरिया बताइए, आप ऐसी क्राइटेरिया एस्टैब्लिश करिए कि कौन से लोग हैं, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह के एट्रीब्यूट होने चाहिए इंसान में, ताकि उसको हम अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना सकें. तो आप एस्टैब्लिश करिए कि आपकी कंपनी में किस टाइप के लोगों की ज़रूरत है, ताकि आप ऐसी क्वालिटीज़ लोगों में आइडेंटिफाई कर पाएँ. या जब आप सिलेक्ट करने की जब आप देख के नज़र रखेंगे कि किसको अपने लाना चाहिए, तो आपको पता तो होगा कि भैया इस टाइप का चाहिए, है ना. So for example, if we have to hire a teacher someday, we would certainly look forward कि यार नंबर 1 किसका लैंग्वेज ठीक है, कौन कल्चर समझता है, क्योंकि अब ऑनलाइन पढ़ाना है तो यू नीड अ फैंटास्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर. देन यू नीड टू कनेक्ट, कम्युनिकेशन कनेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. देन समबडी, अभी आज की डेट में जो टीचिंग में आना चाहता है, दे शुड बी वेरी 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 क्वालिटी कॉन्शियस, बिकॉज नाउ यू आर रीचिंग आउट टू द वाइडर ऑडियंसेस. हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में आपको पहुंचना है. तो इफ़ वी हैव टू हायर अ टीचर, इफ आई हैव टू हायर समबडी एज अ टीचर, व्हाट क्वालिटीज आई लुक? नंबर 1, communication skills. Number 2, how comfortable somebody is in front of the camera, how good somebody can communicate, how empathetic, और how much कितना स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी वाला आदमी है. क्योंकि टीचिंग इज सच अ जॉब कि आपको बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ता है, बिकॉज इफ अ टीचर इज नॉट ऑनेस्ट, स्टूडेंट्स विल नॉट लिसन. एंड how you cannot fake for 3-4 months. If you're speaking with somebody, there at some point of time things will come out. So ठीक है, differences हो सकते हैं. some students may not like every teacher, और टीचिंग में ऐसा होता है कि we always discount 20-30% students, because every student cannot like every teacher and every teacher cannot like every student. But apart, if you're looking forward for a teacher, we would see certain qualities, कि आज की डेट में अगर टीचिंग में आना है तो कुछ यू नीड अ वेरी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट होना चाहिए आपका. क्योंकि क्या है, अगर बहुत सारे लोग टीचर बन रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी टीचर बनना चाहते हैं, बट देन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल सेपरेट मैन फ्रॉम द बॉयज इज द सॉर्ट ऑफ कंटेंट दैट यू ब्रिंग इन. ठीक है, बेसिक तो सब पढ़ा लेंगे, बेसिक बात तो हर कोई कर लेगा. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सी कि यार ठीक है, डिग्री विग्री साइड रख, सारी चीज़ें साइड रख, कंटेंट कितना है आपके पास.
कितना आपने रीडिंग की हुई है, कितनी रीडिंग है, कितनी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, कितना दुनिया को फॉलो करते हो। तो मे बी वी कैन हैव दीज एट्रीब्यूट्स कि ठीक है हमारे यहाँ ज्वाइन करना है, दीज आर 1 2 3 4 5 6, दीज आर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। सो कंपनी को नॉमिनेशन नॉमिनेशन कमेटी को ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करना है ताकि फ्यूचर में हम हमारे यहाँ पर डायरेक्टर्स रख सकें। सॉरी further, the last point is recommend to the board a policy relating to remuneration for directors, KMP and other employees। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक पॉलिसी बनाकर आपको रिकमेंड करनी है रेम्यूनरेशन पे। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन ऑफ द बोर्ड के ऊपर में पॉलिसी बनानी होगी और रिकमेंड करनी होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। दीज आर द सर्टेन थिंग्स दैट द कमिटी विल हैव टू डू। 3 चीज़ें रेम्यूनरेशन से रिलेटेड है। कौन सी? परफॉर्मेंस का रेम्यूनरेशन से क्लियर रिश्ता होना चाहिए। रेम्यूनरेशन का स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएटली फिक्स, थोड़ा पोर्शन फिक्स, थोड़ा इंसेंटिव बेस्ड होना चाहिए। आप कम से कम इतना रेम्यूनरेशन ऑफर करो ताकि हम अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, उनको रिटेन कर सकें और उनको मोटिवेट कर सकें। फर्दर नॉमिनेशन से रिलेटेड क्या बात है, देखिए भाई, पहले तो फ्यूचर लीडर्स को आइडेंटिफाई करो, लिस्ट आउट द एट्रीब्यूट्स विच यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। देन इवैल्यूएशन, बोर्ड इवैल्यूएशन को लेकर आप स्पेसिफिक मैनर बताइए कि किस तरह बोर्ड को इफेक्टिव तरीके से इवैल्यूएट किया जाएगा, किस तरह आप डायरेक्टर्स की इवैल्यूएशन करोगे। देन recommend to the board a policy relating to remuneration of the directors, KMP, etc. So that is something that the nomination remuneration committee has to do. What we'll do is, in a very simplified manner, I will write down the terms of reference. ठीक है, so let's just write it down. Nomination remuneration committee. So there are 3 specific points जो रेम्यूनरेशन से रिलेटेड हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, आपको ऐसे लिखना नहीं कि रेम्यूनरेशन से रिलेटेड ये 3 पॉइंट, नॉमिनेशन से रिलेटेड, डोंट डू दैट। आई एम टेलिंग यू कि आपके दिमाग में वैसे स्ट्रक्चर बनाई कि आपको याद रहे। सो नंबर 1, NRC शैल इंश्योर 1 2 3, ये तीनों पॉइंट किससे रिलेटेड है? रेम्यूनरेशन से रिलेटेड। क्या क्या था? दैट द रेम्यूनरेशन of directors is reasonable and sufficient to attract, retain and motivate employees, directors। स्टार्टअप्स में भी यार, मतलब स्टार्टअप्स में भी अगर कैश नहीं होता है, क्योंकि जो कंपनी स्टार्टअप कर रही हैं, जो कंपनीज ने जस्ट शुरू किया है बिजनेस, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू हैव लॉट ऑफ कैश। सो द स्टार्टअप्स हैव देयर ओन वेज। तो स्टार्टअप्स क्या करती हैं? शेयर्स दे देती हैं, स्टॉक ऑप्शंस दे देती है, स्वेट इक्विटी शेयर्स जैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट स्टार्टअप्स के अपने तरीके होते हैं कि अगर कोई कंपनी अभी भी शुरू की है तो नेचुरली मैं चाहूँगा, अगर कंपनी न्यू है, अभी भी बिजनेस शुरू किया, तो नेचुरली कैश क्रंच होगी, क्योंकि जो भी बिजनेस में स्टार्टअप करेगा वो मार्केटिंग पे पैसा लगाएगा, वो बिजनेस में इनोवेशन के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में पैसा लगाएगा, तो उसके पास एम्प्लॉयज़ के लिए पैसा नहीं होगा। और स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको और अच्छे टाइप के लोग चाहिए। तो स्टार्टअप्स भले कैश नहीं देती हैं, लेकिन वो बोलती हैं कि ठीक है, इफ द कंपनी ग्रोज वी विल गिव यू शेयर्स, कंपनी के साथ आप भी ग्रो करोगे। बट येस, इट शुड बी सफिशिएंट, इट शुड बी रीजनेबल, ताकि लोग आपके यहाँ पे काम करने के लिए अट्रैक्टेड हों, आपके यहाँ लोग काम करना चाहें, आपके यहाँ पर काम करने के लिए लोग अट्रैक्ट हों और मोटिवेटेड भी रहें। सेकेंडली, रिलेशनशिप ऑफ रेम्यूनरेशन टू परफॉर्मेंस इज क्लियर। तो जस्ट अ मिनट, सॉरी, तो भाई इनके बीच क्लियर रिलेशनशिप होना चाहिए।
तब जाके बनेगी बात. सो रेम्यूनरेशन और परफॉर्मेंस के बीच में क्लियर रिलेशनशिप होना चाहिए और इट शुड मीट अप्रोप्रिएट बेंचमार्क्स. बट जस्ट टू आपको याद कराने के लिए मैं आपको शॉर्ट में ये लिख कर दे रहा हूँ. और थर्डली, जो भी रेम्यूनरेशन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स प्लस इंसेंटिव बेस्ड होना चाहिए. ठीक है. सो या दीज आर द थ्री, मोटा मोटा ये तीन चीजें थी जो रेम्यूनरेशन से रिलेटेड नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी के फंक्शंस में लिखी हुई है. इसके अलावा ड्यूटीज में कुछ और भी चीजें लिखी हुई है. फंडामेंटली है तो सारी ड्यूटीज ही, बट हाँ आपको मैंने बता दिया कि हाउ टू क्रैक दिस कोड, आपको कैसे याद कर लेना है दिमाग में. शैल इंश्योर में 3 पॉइंट्स आ रहे हैं रेम्यूनरेशन से रिलेटेड, ड्यूटीज में पांचों पॉइंट जो आ रहे हैं वो नॉमिनेशन से रिलेटेड आ रहे हैं. ठीक है. सो नॉमिनेशन से रिलेटेड पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई फ्यूचर लीडर्स. मैं याद कराने के लिए सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ, बाकी तो नोट्स में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है. सो आइडेंटिफाई पर्सन्स हु आर क्वालिफाइड टू बिकम डायरेक्टर्स. तो फ्यूचर के अपने लीडर्स को आइडेंटिफाई करना. Recommend the appointment and removal of directors. That's number 2. Number 3, shall specify effective manner of effective evaluation of the performance of board. तो आपने ये तो बता दिया कि, सॉरी गाइस 1 सेकेंड, तो आपने ये तो बता दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैसे एवेल्युएट करना है, उनकी एवेल्युएशन की पॉलिसी आपने बना दी, लेकिन उसको रिव्यू भी करो कि सही तरीके से वो हो भी रहा है कि काम नहीं हो रहा. तो ये भी आपको देखना पड़ेगा. इसके अलावा देयर आर 2 मोर पॉइंट्स. सॉरी. वन इज ऑफ कोर्स आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स. आप कैसे किस तरह के लोगों को अपनी कंपनी में लाना चाहते हैं, तो ये एट्रीब्यूट्स आप आइडेंटिफाई करिए और इवेंचुअली इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द फ्यूचर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. Recommend to the board a policy related to remuneration. तो रेम्यूनरेशन को लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पॉलिसी भी रिकमेंड करिए. ये जो मैंने आपको लिख के दिया, ये मैंने काफ़ी कट शॉर्ट करके लिख के दिया. मेरी कोशिश ये थी कि आप एक पेज में अपने हाथ से नोट्स बनाएं ताकि आपको चीज़ें थोड़ी याद भी हो. थोड़ा बहुत लैंग्वेज ऊपर नीचे होएगा, हल्का हल्का चलेगा, बट अगर पूछा, और ये पूछते हैं, ठीक है, ऑडिट कमिटी, एनआरसी, इसमें से क्वेश्चन बनता है. दे में आस्क यू एटलीस्ट 4-5 मार्क क्वेश्चन, या ना ऑडिट कमिटी से पूछेंगे, या विजिल मैकेनिज्म पूछेंगे, या नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी पूछेंगे. कुछ ना कुछ तो वो पूछ ही सकते हैं आपसे. ठीक है. तो ये याद करने वाली चीज़ है. एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, आई वुड लव वन थिंग कि एक चीज़ हम लोग पूरा सेक्शन रीड करते हैं. प्लीज़ एक बार मेरी बात मानो, मैं आपको फालतू में तो बोलूँगा नहीं, आ जाओ एक बार रीड करवाता हूँ आपको. सो पूरा सेक्शन भी मैंने दिया हुआ है. दो मैं चाहूँगा कि आप स्पेसिफिकली कौन से 3 चीज़ें देखें. कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन, परफॉर्मेंस, फंक्शंस. ये 3 चीजें आप देखें. लेकिन ये सारी चीजें कहाँ से रही है? तो एट द एंड ऑफ द डे बेयर एक्ट से ही आ रही है ना. तो बेयर एक्ट भी देख लेते हैं एक बार. सो लेट अस चेक आउट द बेयर एक्ट. सो द बोर्ड ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी, सच अदर क्लास ऑफ कंपनीज, उनको नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी बनानी है.
जिसमें कम से कम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, जिसमें से कम आधे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। ये तो हमने पढ़ लिया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन या कंपनी का चेयरमैन नॉमिनेशन नॉमिनेशन कमेटी में हो तो सकता है, लेकिन नॉमिनेशन नॉमिनेशन कमेटी का चेयरमैन नहीं हो सकता, ये भी हमने देख लिया। Nomination Nomination Committee shall identify persons who are qualified to become directors and who may be appointed in the senior management in accordance with the criteria laid down and recommend to the board their appointment and removal and shall carry out evaluation of each director's performance. तो नॉमिनेशन नॉमिनेशन कमेटी को आइडेंटिफाई करना है हमारे यहाँ फ्यूचर में डायरेक्टर कौन बन सकता है, डायरेक्टर के परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करनी है, बताना है कि किसको अपॉइंट करना चाहिए, रिकमेंड करना है किसको अपॉइंट करें, किसको रिमूव करें। Further, it shall formulate a criteria for determining qualifications, positive attributes, and independence of directors, and recommend to the board a policy relating to the remuneration of directors. ठीक है? So this is what has been written specifically in section 178, subsection 3. Then NRC, while formulating policy under subsection 3, ensure that level and composition of remuneration is reasonable and sufficient to attract, retain, and motivate the directors of company of the quality required to run the company successfully. Relationship of remuneration to performance is clear. Remuneration to directors involves a balance between fixed and incentive pay reflecting short and long term performance objectives appropriate to the working of the company. और बोर्ड रिपोर्ट में बताइए क्या पॉलिसी है आपकी। रेम्यूनरेशन की पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में भी पब्लिश करनी पड़ती है साल में एक बार। बहुत रेलेवेंट बातें हैं सब। सो दीज आर द 4 subsections that I wanted you to read. I have given you both the options. You may choose to do 1, 2, 3, 4, or you may choose to do constitution, composition, functions. वैसे भी नंबर मिलने हैं, ऐसे भी नंबर मिलने हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे पढ़ लो। मेरा काम था पूरा बता देना। इसमें रूल्स का कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैंने आपको रूल्स भी बता दिए हैं। ठीक है। सो गाइज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी हिंदुस्तान में कई सारी कंपनियों में ये प्रॉब्लम है कि कुछ चंद लोगों पे ही कंपनी डिपेंड करती है और कंपनी सक्सेशन प्लानिंग नहीं करती हैं अच्छे से, है ना। तो सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए कि ये डायरेक्टर जाएंगे तो इनके बाद कौन आएगा, ये मैनेजिंग डायरेक्टर जाएगा तो इनके बाद कौन आएगा, इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में थोड़ा सा एक स्पेस है जहाँ पे काफ़ी अच्छा काम होना बाकी है। कुछ कंपनियाँ हैं, जैसे गोदरेज का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, दे हैव अ ड्रॉप डेड पॉलिसी प्लान। तो अगर कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स को कुछ हो गया, सबके सब मर गए, दे इमीडिएटली हैव अदर डायरेक्टर्स रेडी जो उनकी जगह पे तुरंत आ जाएंगे। सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ पॉलिसीज दैट यू शुड हैव, सो दैट 1 लाख शेयर होल्डर, 2 लाख शेयर होल्डर जो अपना जिंदगी का हार्ड अर्न मनी कंपनी में लगाते हैं, अगर 5-10 डायरेक्टर को कुछ हो भी गया तो यू हैव एंटायर 10-15 पीपल, अ टीम रेडी टू रन द शो। द शो मस्ट गो ऑन because there are a lot of people involved, lot of money involved, है ना। So this is something the nomination and remuneration committee does, and the reason I gave you examples from cricket sports is because there is a book which is called as The Winning Way. Today only I had recommended this book to someone. बहुत बढ़िया उसमें एग्जाम्पल्स दिए कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है, या let me talk about what I have heard Harsha Bhogle saying in one of the sessions. He says that Australian military जब अपने यहाँ पर हायरिंग करती है, जब वो लोगों को अपने यहाँ हायर करती है, तो अगर आप लाइफ में कभी फेल नहीं हुए हो तो ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री विल नॉट हायर यू। वाई? बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि अगर आप फेल हो जाओगे या कोई सिचुएशन में आ जाओगे तो कैसे रिएक्ट करोगे। somebody who has failed, who has risen from, you know, उस फेलियर से वापस जो लाइफ में उठ के खड़ा हो गया है, वो मिलिट्री में हमारे स्क्वाड में चाहिए हमको। somebody who has never failed, somebody who has never seen failure in life, he is not actually hired. तो ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री जो है उसकी हायरिंग की ये बात है कि जो कभी फेल नहीं हो उसको हायर नहीं करते। क्यों? क्योंकि यू डोंट नो हाउ ही वुड और शी वुड रिएक्ट इफ ही और शी फेल्स। टू टॉक अबाउट ताज इंडियन होटल्स, ताज होटल्स की बात करते हैं, दे डू नॉट हायर पीपल फॉर एप्टीट्यूड, दे हायर पीपल फॉर देयर एटीट्यूड। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पीपल हु हैव द हार्ट टू सर्व पीपल, जो लोग एम्पैथी रखते हैं, जो लोग स्पेशली दे हायर फ्रॉम टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ मोर। क्यों? क्योंकि गांव से आदमी जब ताज होटल में रहने आता है तो एक गांव का आदमी जो गांव में रहा हुआ है वो शायद ज़्यादा अच्छे से भाव समझेगा उस आदमी का।
अगर आप साउथ बॉम्बे और साउथ दिल्ली से ही लोगों को ताज होटल में हायर करोगे, तो गांव से बेचारा जो पहली बार कोल्हापुर से या पहली बार यवतमाल से या सम टाउन पहली बार कोई ताज में आया है रहने, उसको पता ही नहीं है बेचारे को कैसे बिहेव करना है, तो आप तो उसको और पागल तरीके से और उसको गलत बिहेव करा दोगे। आई एम नॉट सेइंग साउथ दिल्ली साउथ मुंबई खराब है, बट मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी एलीट क्लास है, दे मे नॉट अंडरस्टैंड गांव वाले का दिमाग या दिल कैसे चलता है। सो ताज होटल है, उनके एम्प्लॉयज़ को हायर करने की बिल्कुल अलग रणनीति होती है ना। तो देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम स्पोर्ट्स। लुक एट द वे द टीम्स आर मेड। अलग अलग आईपीएल की टीम्स में देखो किस तरह से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। स्पेशली अगर आप मुंबई देखोगे तो दे वुड नेवर हैव अ स्टार फॉरेन प्लेयर, वो हमेशा एक मीडियोकर फॉरेन प्लेयर लेते हैं और इंडियन प्लेयर्स को डेवलप करते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। आई मे बी इनकरेक्ट, I may be wrong in my observations, but yes, the role of nomination remuneration committee is very, very, very important. So that is something that I wanted to talk about. So section 178 subsection 1 specifically provides for nomination remuneration committee. Subsection 2, 3, 4 also provides about various things about nomination remuneration committee. Subsection 5 talks about stakeholders committee, which we shall discuss after this video. Thank you guys, you have been a lovely audience. Bye bye. Alright guys, let's talk about 178 subsection 5, which provides for the stakeholders relationship committee. Now it's comparatively a simpler one. There are three things that we will be looking at. Number one is which company has to constitute this committee, then what shall be the composition, and third ये पर्टिकुलर कमिटी का काम क्या होगा। सो बहुत सिंपल है, ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें 1000 या 1000 से ज़्यादा सिक्योरिटीज होल्डर है, मतलब शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर या किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी, सारे मिला के टोटल मिला के अगर 1000 या 1000 से ज़्यादा लोग शेयर्स, प्रेफरेंस या डिवेंचर्स कोई भी सिक्योरिटी कंपनी की होल्ड करते हैं, ऐसी कोई भी कंपनी जो 1000 या 1000 से ज़्यादा सिक्योरिटी होल्डर जिस कंपनी में होंगे, उसे ये स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी बनानी पड़ेगी। सेकेंड, ये पर्टिकुलर कमिटी में कंपोजिशन क्या होगा। कंपोजिशन के बारे में कुछ बताया नहीं है, सिर्फ इतना बताया कि इस कमिटी का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, मतलब कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, इतना बताया हुआ है। इस कमिटी के बाकी के मेंबर्स कौन हो सकते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर फ्री टू डिसाइड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस पर्टिकुलर कमिटी में मेंबर कौन होगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट देयर ओन विल, एट देयर ओन लिबर्टी दे कैन डिसाइड दैट। फर्दर व्हाट शैल बी द फंक्शन, कुछ नहीं, निवेशकों की समस्याओं का समाधान देना है। योर जॉब इज टू कंसिडर एंड रिजॉल्व द ग्रीवेंसेज ऑफ द सिक्योरिटीज होल्डर्स। आई टेल यू हाउ इट हैपेंस। सो व्हेन वी वर इन द, मतलब व्हेन आई वाज इन द कंपनी, व्हेन वी वर इन पूर्ति ग्रुप, हाउ वी यूज्ड टू डू इज फॉर एवरी ईयर वी यूज्ड टू मेंटेन अ बॉक्स फाइल। सो जितने निवेशक कोई कंप्लेन लेके आते थे, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2021 की हमारी एक बॉक्स फाइल बनेगी स्टेक होल्डर्स ग्रीवेंसेस की, शेयर होल्डर्स ग्रीवेंसेस की। तो जो भी निवेशक शेयर होल्डर है, डिवेंचर होल्डर, हमारे कंपनी में शेयर होल्डर ही थे, प्रेफरेंस शेयर हमने इशू नहीं किए थे, डिवेंचर हमने इशू नहीं किए थे। तो हमारी कंपनी में एक बॉक्स फाइल हमने मेंटेन की थी शेयर होल्डर्स के लिए। तो जो शेयर होल्डर की कंप्लेन आती थी, हम बराबर वो फाइल में मेंटेन करते थे। उसके बाद जब ये स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की मीटिंग होती थी, तो ये फाइल हम उस पर्टिकुलर मीटिंग में प्रेजेंट करते थे, टेबल करते थे। तो जितने भी ग्रीवेंसेस रिसीव हुए होते थे, वो स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी के जो मेंबर्स रहते थे वो कंसिडर करते थे। अगर ग्रीवेंसेस सॉल्व हो गए तो वो कंप्लेन को क्लोज कर दिया जाता था, और जो रिड्रेसल हमने दिया, जो रिजॉल्व हमने किया वो कंप्लेन को, उसकी कंप्लेन की क्लोजिंग लेटर बनती थी, और फिर वो कंप्लेन की क्लोजिंग लेटर, रिड्रेसल लेटर भी हम लोग उसी फाइल में मेंटेन करते थे। तो हमारी कंपनी में हर फाइनेंशियल ईयर के लिए जितनी कंप्लेंट्स आई, उसको कैसे रिड्रेस किया, उसमें क्या समाधान आया, क्या दिक्कतें थी या क्या जो भी हुआ, सबके लिए फाइल मेंटेन रहती थी। जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है, लिस्ट होती है आपकी कंपनी, अब लिस्टिंग होने के बाद जब जल्दी पैसे रेस करने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी को फास्ट ट्रैक इश्यूज़ लेकर आने, कॉन्सेप्ट है फास्ट ट्रैक इश्यूज़ का, जिसमें ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी के साथ 30 दिन पहले नहीं फाइल करना पड़ता है, डायरेक्ट पैसा रेस कर सकते हो आप। तो कई सारे जगहों पे ये काम आता है कि आपने कंपनी में जो निवेशकों की समस्याएं आई उनको रिड्रेस किया क्या, तो ये वहाँ पे काम आता है। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट these are the three things that you need to take care of.
सो दैट इज अबाउट 178. ये है 178 के बारे में. 178 वन नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी के बारे में बात करते हैं. 178 5 स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी के बारे में बात करता है. So now we have already seen about the audit committee, about the nomination remuneration committee, about the stakeholder relationship committee. ये जो तीनों committees बनती है, board of directors ही ये committees में member होते हैं. ये जो committees बनती है, ये committees की भी meeting होती है. ये committees की meeting का quorum भी 174 के हिसाब से ही होना चाहिए. ये जितनी भी कमिटीज़ की हमने बात की, इन कमिटीज़ की जो चेयरपर्सन्स हैं, चेयरमैन हैं ये कमिटीज़ के, वो चेयरमैन्स को जनरल मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी है. अपन ने जनरल मीटिंग के सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 में भी देखा था, अभी 178 में फिर से ये मेंशन किया हुआ है. एंड इफ़ यू फेल टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, उसके लिए नॉन कंप्लायंस के लेकर भी एक सेशन है. सो 5 लाख से लेकर कंपनी को 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, और कंपनी का जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसको 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है. ओके, सो दैट इज व्हाट इज मेंशन इन 178. अगर आपको जल्दी से शॉर्ट में कभी कमेटी को पढ़ना रहा, तो अगर आप नोट्स में जाएंगे तो एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कुछ कुछ बेसिक बातें ये तीनों कमिटीज़ के बारे में टेबल में लिखी हुई है. तो कहीं ना कहीं आप लोग आराम से उसको समझ सकते हैं. ये टेबल को अगर आप रीड करते हैं, या एक अच्छे से एक पेज में आप ये टेबल को और अच्छे से ड्रॉ करिए. इसमें आप 1-2 पॉइंट्स अपना ऐड करना चाहते हैं करिए, बट ये बहुत बढ़िया तरीका है. जो तीनों कमिटीज़ की हमने बात की, वो तीनों कमिटीज़ के लिए एक बढ़िया टेबल बना हुआ है. नीचे विजिल मैकेनिज्म के बारे में लिखा हुआ है. तो ये भी एक पढ़ने का बहुत उम्दा तरीका है. एक ही पेज में तीनों कमेटी की टेबल बनाओ, एक ही पेज में तीनों कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन, फंक्शंस. क्या करो आप, मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ क्या करना है आपको, लेकिन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो फिर आपको थोड़ी ना मज़ा आएगा, आपको थोड़ी ना अंडरस्टैंडिंग आएगी. तो आप क्या करिए, ऐसे 3 कॉलम्स बनाइए. ऑडिट कमेटी, अरे बच्चियाँ क्या नोट्स बनाती हैं यार, खतरनाक नोट बनाते हैं बच्चे अपने. बच्चियाँ क्या, बंदे भी ज़बरदस्त नोट बनाते हैं. बंदे दिखाते नहीं है, बंदों के नोट देख बंदियाँ शर्मा जाए, इतने बेहतरीन नोट देखे हो मैंने. और वो बंदे तो बोलते हैं सर किसी को बोलो मत, अजीब लगता है. मैंने कहा अजीब क्या भाई, तो अच्छा काम कर रहा है, इसमें क्या अजीब है. तो वैसे तो मैंने भी कभी किसी को नोट दिखाए नहीं, मुझे भी थोड़ी शर्म आती है नोट दिखाने में. सो नॉमिनेशन कमेटी, एंड देन यू हैव स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी. आप क्या करो, ऐसा एक बढ़िया सा चार्ट बनाओ. इसमें यहाँ पे डालो कॉन्स्टिट्यूट किसको करना है, मतलब सबसे पहला प्रावधान कौन सा है भाई, एप्लीकेबिलिटी का. फिर कंपोजिशन, फिर फंक्शंस. फंक्शंस का कॉलम थोड़ा बड़ा बनेगा. आपका एक ही पेज में ये तीनों चीज़ें आ सकती है. इस आइडिया तो मैंने आपको वैसे नोट्स में डाल के दिया हुआ है, तो आप लोग बनाइए इस टाइप का टेबल, एंड आई एम श्योर कि आपको काफ़ी हेल्प होगी ऐसे नोट्स बनाने में. फेल पता है कौन होता है, जिसने अपने नोट्स अच्छे से नहीं बनाए हुए होते हैं. मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले अगर आप 5 किताबों से पढ़ रहे हो, तो आपका आधा टाइम तो किताबों को छानने में ही लग जाएगा. तो हम हर बार बोलते हैं कि नोट्स आप अच्छे बनाइए, एक ही सोर्स रखिए नोट्स का. मतलब एटलीस्ट हैंड रिटन नोट्स जो है, ऑफ कोर्स टीचर तो आपका करके देगा ही आपको, टीचर का तो काम है, लेकिन आपने अपनी तरफ से क्या एक्स्ट्रा किया. एक ही क्लास का बच्चा पास होता है, एक ही क्लास का बच्चा फेल भी होता है, एक ही क्लास की बच्ची 60 भी मारती है, एक ही क्लास की बच्ची 40 भी मारती है, एक ही क्लास का लौंडा गोदरेज में पहुंच जाता है, दूसरा एक क्लास का लौंडा नागपुर में इंटर्नशिप भी कर रहा होता है. खराब नहीं है नागपुर में इंटर्नशिप करना, मैं बोल रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि आपने कितना एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, बिकॉज ऑल दैट मैटर्स इज हाउ मच एक्स्ट्रा यू आर पुटिंग इन. तो ज़रूर ये सब चार्ट्स बनाइएगा, खुद से बनाइए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. शेयर करना होगा तो मुझसे करना है, एक दूसरे से शेयर मत करो, नहीं तो फिर आधा ध्यान तुम्हारा पंचायत में चले जाएगा. तो किटी पार्टी करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेहनत कर लो, ठीक है. एंड लेट 25 फरवरी 25 अगस्त रिजल्ट बोलेगा, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है. तो तुम अच्छे से काम करो.
और इस टाइप का नोट्स आप बनाने की कोशिश कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझे ऑडियो मैसेज करिएगा। और इफ़ यू वांट कोई इमेजेस या कोई आपको लिंक्स चाहिए तो आई एक्चुअली हैव लॉट ऑफ लिंक्स रीड करने के लिए। अगर आपको मैटर चाहिए आई कैन एक्चुअली सेंड यू लॉट ऑफ लिंक्स, तो बहुत सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, thank you guys, you have been a lovely audience as usual. Thank you. We will begin with 179, which is powers of the board of directors. सेक्शन 179 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरे कंपनीज एक्ट 2013 में कोई सेक्शन है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन ऑन 179। थैंक यू गाइस, बाय बाय।